اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ والعصمت الفاطمیہ والصولة الحیدریہ والحلم الحسنیہ والشجاعة المسیلیہ والعبادة السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقابة النقویہ والحیبة العسکری والغیبة الالہ القائم بامر اللہ فقال امام جعفر صادق المراحل الصالحہ خیر من الف رجل غیر صالح ولن تحسن ما قبیلا. جس قول امام جعفر صادق کو پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئے ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک نیک اور صالح عورت ہزار غیر صالح مردوں سے افضل ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے جب خلقت کا آغاز کیا ہے، اس دنیا کا آغاز کیا ہے، تو آغاز میں حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا اور اس کے بعد انہی کے ساتھ جناب حوا کو بھی خلق فرمایا. خدا در حقیقت یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو معاشرہ ہے یہ مرد اور خواتین دونوں سے مل کر تشکیل پاتا ہے. جہاں مرد کو اگر گھر کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ تمہیں نان و نفقہ کمانا ہے، اسی طرح ایک عورت کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ گھر کو چلائے گی، بچوں کو تربیت دے گی. اسی طرح معاشرے میں جو مرد ہیں ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، تو خواتین کو بھی اللہ نے اپنی ذمہ داریوں سے نوازا ہے. کیونکہ اسلام آنے سے پہلے عرب میں اور باقی اور جگہوں پر جو عورت کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، جو لڑکیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، وہ سلوک ہم سب سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اس طرح سے زندہ بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا. لیکن جب اسلام آیا ہے تو اسلام نے خواتین کی عظمت سامنے دکھائی ہے. قرآن مجید میں بھی 18 خواتین کا ذکر ملتا ہے کہ جو ان کے رفتار اور کردار کے حساب سے ان کو 3 طرح کی خواتین میں ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے. پہلی وہ خواتین ہے کہ جو نیک خواتین ہیں، کچھ وہ خواتین ہیں کہ جو بد خواتین ہیں کہ جن کی فطرت نیک نہیں، اور کچھ ایسی خواتین بھی ہیں کہ جو پہلے ان کی خصوصیت نیک نہیں تھی لیکن اپنی محنت سے اور خداوند متعال کی توفیق سے انہوں نے وہ راہ راست پر آ گئی. وہ خطا کی مرتکب تھیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کی اصلاح کر لی. تو وہ پہلی خواتین جو قرآن میں نیک خواتین کے زمرے میں ذکر ہیں کہ جن میں سب سے پہلے تصریحاً جن کا ذکر ہوا ہے وہ جناب مریم سلام اللہ علیہا ہے. اس کے بعد آسیہ جناب جو کہ زوجہ ہیں فرعون کی. عموماً خواتین کو عموماً یہ مسائل درپیش آتے ہیں اپنے خانوادے میں کہ ہمارے شوہر حضرات صحیح نہیں ہیں، تو وہ جناب آسیہ کی تاریخ پڑھیں، وہ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے مقابلہ کیا، وہ کس طرح سے، حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ جناب آسیہ وہ خاتون ہیں کہ جن کو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کے طور پر متعارف کرایا جائے گا. یہ میں بتاتی چلوں کہ ماشاءاللہ مجمع بہت زیادہ ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے تو تمام لوگوں کو پڑھنا چاہیے. کچھ لوگوں کے مجھے لب ہلتے ہوئے نظر نہیں آئے. یقین جانیں آخرت میں جب ہم جائیں گے اور یہ مناظر دیکھ کر بتایا پوچھا جائے گا کہ تم نے حضور کا نام آتے ہی مجھ پر درود کیوں نہیں پہنچا. اس لیے بلندتر آواز میں و آواز بلند درود پڑھیے گا. جناب آسیہ کہ جو کہ فرعون کی زوجہ ہے، اس کے علاوہ جناب ہاجرہ، جناب سارہ، ان سے بھی ہم درس لے سکتے ہیں. وہ مائیں کہ جن کو اولاد نہیں ہو رہی اور پھر ایک کافی عرصے کے بعد وہ حاملہ ہوئی، کس طرح سے ان کے ایام تھے، کس طرح سے ان کی مشکلات تھی، ان کے لیے بھی ہم ان کو رجوع کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ حضرت موسیٰ کی والدہ، اس کی بہن اور جناب شعیب کی بیٹیاں، ملکہ سبا، یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کا قرآن میں نیک خواتین میں ذکر آیا ہے. اسی طرح جو بری خواتین ہیں ان میں سب سے پہلے ذکر آتا ہے زوجہ ابو لہب کا. پوری آیت ہے
सूरा है। इसी तरह ज़ौजा हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम। अब यहाँ पर भी हमारे लिए दर्स है कि अगर खुदा ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह की शिया घराने पैदा कर दिया है, हम मजालिसों में आने वाले हैं, लेकिन हमें अपने किरदार पर मुसलसल निगाहें रखनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सीही समझते रहे कि हमारा तो वास्ता अली के घराने से है, तो हम कहीं मुनहरिफ देखना चाहिए हमें अपने आप को कि क्या वाकईन हम अली के रास्ते पे चल रहे हैं, क्या वाकईन हम इमाम हुसैन के रास्ते पर चल रहे हैं। इसी तरह जो तीसरी किस्म है उसमें सर फहरिस्त दास्ताने आप सब जानते हैं जुलेखा का, कि जो हजरत कुरान में सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम में जिनका तस्करा मिलता है कि वो पहली कैसी खातून थी, बाद में कैसी खातून है, उनके ऊपर बाकायदा फिल्म भी बनी है, आप चाहें तो देख भी सकते हैं कि बच्चों को इस तरह से ड्रामेटिक अंदाज में चीजों को देखकर ज्यादा तरजीह मिलती है। अजीजा ने मोहतरम, जैसे जैसे दुनिया गुजरती गई इसी तरह आइम्मा के जमाने में भी हमारी बहुत सी खवातीन थी जिनका जिक्र आता है, जिन्होंने जैसे जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जात को देखे, उनकी हस्ती, उनका जितना कुछ था, बीबी की 18 साल जिंदगी वो हमारे लिए एक दर्स है। इसी तरह और भी खवातीन थी कि जो आम जनाब फिजा सलामुल्लाह अलैहा कि 20 साल तक जिन्होंने कुरान से कलाम किया। गैबत सुगरा में कि जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम गैबत सुगरा में थे, क्योंकि हमें जमाना पे बुलंदर उसमें भी बहुत सी खवातीन का किरदार है। हत्ता कि इमाम हसन की जो वालिदा है वो अपने जमाने में शियों की पनाहगाह के तौर पर मारूफ थी। इसी तरह गैबत कुबरा के जमाने में भी बहुत सी खवातीन हैं। हो सकता है आप लोगों ने कहीं पर किसी मजलिस में या किसी किताब में पढ़ा हो कि एक ऐसी खातून थी कि जब ईरान में बाकायदा कह दिया गया था कि अब कोई पर्दा नहीं करेगा। ईरान में इनकलाब से पहले एक दौर ऐसा आया था कि शाह ने पाबंदी लगा दी थी पर्दे के ऊपर, हत्ता कि उनकी जो पुलिस थी उनको ये ऑर्डर था कि अगर अपने घर से कोई खातून पर्दे के आलम में चादर पहन के बाहर निकलती है तो उसकी चादर उतार दी जाए, और उतारी जाती थी। वो खातून अपने घर में 3 साल तक, रिवायात में है कि वो 3 साल तक वो अकेली अपने घर में रही, और जब उसका इंतकाल हुआ है तो खुद मेरे वक्त के इमाम ज़माना उसकी तशय्युअ जनाजे के लिए आए थे। तो मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जमाना कोई बहुत दूर का नहीं है, यानी ऐसी खवातीन भी गुजरी है। तो गैबत कुबरा के जमाने में उस खवातीन के जो खुदा और रसूल की इताअत करते हुए अपने इमाम वक्त की नुसरत करते हुए किस तरह मुसलसल इंतजार अगर उनका है, तो वाकई वो वक्त आएगा कि जब मेरा इमाम ज़रूर करेगा तो हमें भी मौला की खिदमत में पहुंचाया जाएगा, हमें सवाब तो अलग मिलेगा, लेकिन हम अपने मौला के साथ इंशाअल्लाह की महशर होंगे। तो अज़ीज़ा ने मोहतरम, जैसे कि खवातीन का जिक्र आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि एक साले औरत 1000 गैर साले मर्दों से अफजल है। इसी के आगे रसूल की हदीस है कि जो औरत भी 7 दिन तक अपने शौहर की खिदमत करती है उस पर जहन्नम के 7 दरवाजे बंद हो जाते हैं और जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं ताकि वो जिधर से जाए वो इस बहिश्त में जा सके। अब ये औरत अमूमन सवाल उठेगा कि बस फिर तो हम नमाज ना पढ़े, हम तो रोजा ही ना रखे क्योंकि हमने तो बस शौहर की खिदमत कर ली है। नहीं, जहाँ आपके वाजिबात हैं और हराम उनसे आपने रुकना है। मुस्तहबात की जगह पर ये काम कहा जा रहा है। फर्ज करें कि आपने नमाज शब पढ़नी है लेकिन उस वक्त आपके खावंद आपको बुलाते हैं, कोई काम है घर का, तो आपने उस वक्त उस मुस्तहब को छोड़ के अगर आप खिदमत करती हैं तो यहाँ पर ये सवाब आपको मिलेगा कि अल्लाह जो दरवाजे हैं जहन्नम के वो आपके ऊपर बंद कर देगा और जन्नत के दरवाजे खोल देगा। क्योंकि जितने भी हमें सवाब मिलते हैं, जैसे आयमा मासूमीन की जो ज़ियारत हैं उनके सवाब है, रिवायात में है कि आपको 1000 हजों का सवाब मिलेगा, 1000 उम्रों का, तो ये आपके अपने वाजिब हज के बदले नहीं है। कोई इंसान कहे मैंने तो हज का सवाब भी उठा लिया, लेकिन अगर किसी पे हज वाजिब है तो उसको हज पे जाना है। इसी तरह अगर आपको नमाजों का सवाब मिल रहा है लेकिन आपने अपनी वाजिब नमाजें नहीं पढ़ी तो उसका हिसाब फिर आपको देना पड़ेगा। वाजिबात और जितनी भी हराम है हराम से रुकना और वाजिबात को अंजाम देना, उसके बाद फिर अगर आप ये तमाम काम करते हैं
तो फिर आपके लिए इंशाअल्लाह कि आप खवातीन को जन्नत में बआसानी जगह मिल सकती है। इसी तरह इसी चीज में क्योंकि इंतजार फरज भी हम खवातीन और मर्दों के ऊपर वाजिब है, इंतजार फरज वाजिब कामों में से है, ये मत समझिएगा कि वाजिब नहीं है। अब इंतजार फरज क्या है? इमाम जमाना के दौरे हुकूमत में हाजिर रहने के लिए जो जद्दोजहद की जाती है उसको फरज का इंतजार कहते हैं। इसमें कुछ शराइत है क्योंकि उनकी मार्फत हमें हासिल हो, साथ साथ उनके ज़हूर के हम मुंतज़िर रहे, उनकी हुकूमत के लिए हम खुद को आमादा करें। एक मिसाल पेश करना चाहूंगी कि अगर फर्ज करें मैं आपसे कहती हूँ कि मैं आपके घर तशरीफ लाऊंगी तो आप मेरा कैसे इंतजार करेंगे? सबसे पहले अपने घर को साफ सुथरा करेंगे, उसके बाद आपको पता है कि अगर खाने का टाइम है, चाय का टाइम है, तो आप उसकी चीज़ों का लवाजमात का ख्याल करेंगे। फिर अगर बहुत ही खास आने वाला है तो आप उसके लिए तोहफे का भी इंतजाम करेंगे कि जो चीज़ उसको पसंद हो। उसके बाद अगर सब कुछ आपका तैयार हो चुका है तो भी आप निगाह डालेंगे कि ऐसा तो नहीं कि कोई काम मेरा रुक गया हो, कोई कोना खुदरा मेरा गंदा रह गया हो, या कोई चीज़ मैं भूल चुकी हूँ ना किया हो। फिर भी आप तड़प तड़प के इंतजार करोगे बंदा कब आएगा। फिर आप राब्ता करेंगे, देखेंगे, पूछेंगे कि भाई कब तक आया जाएगा, जो उनके जान पहचान के लोग हैं। तो इंतजार इसी को कहते हैं। इंतजार का मतलब ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख के हम बैठ गए और इंतजार करते रहे, नहीं। इमाम के इंतजार का भी यही मतलब है कि हमें वो पहले जितना भी अमल है कि जो हमें इंतजार से पहले न करना है वो सब करके उसके बाद, और जो अमल हमें उन हस्तियों की तरफ से पहुंचे हैं कि किस तरह से इंतजार किया जाता है। और दूसरा इस अय्याम में क्योंकि हम ग़ैबत कुबरा के जमाने में मौजूद हैं तो हमें उन लोगों से और उन अफकारों से दूर रहना है कि जो हमें बातिल की तरफ धकेले। हमें अपनी निगाह इमाम के तरफ मरकूज करनी है, 12 इमामों की तरफ मरकूज करनी है। और इमाम ने खुद फरमाया कि आखिरी जमाने में मेरे फुकहा की पैरवी करो, आखिरी जमाने में मेरी अपनी नजरें फुकहा की तरफ करो, तो अपनी नजरों को फुकहा की तरफ फेर दीजिए। तो ग़ैबत में हमारे वो कौन से वज़ाइफ हैं? एक दफा जरूर पढ़िएगा, मैं इंशाअल्लाह उसके बाद आपको वज़ाइफ बताऊंगी। सबसे पहले कि अपने इमाम की हकीकी मार्फत को पहचानें। इसके लिए बहुत सी दुआएं मौजूद हैं। एक दुआ का टुकड़ा है, अल्लाहुम्मा आरिफनी हुज्जतक फइन्नका इल्लम तुअर्रिफनी हुज्जतक ज़लमतु अन दीनी। क्या मतलब है? ए अल्लाह, तू अपनी हुज्जत की अगर मुझे शनाख्त नहीं कराएगा, मुझे नहीं पहचानवाएगा तो मैं गुमराह हो जाऊंगा। अपनी नमाजों में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वो दुआएं कि जिसके बारे में ताकीद की गई है, दुआएं फरज है और बहुत सी दुआएं हैं। इसके अलावा अपने इमाम का मुंतजिर रहना। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि हर सुबह शाम अपने इमाम के ज़हूर का इंतजार करते रहो। इसी तरह इताअत इमाम में अपनी जिंदगी गुजर करनी। खुद इमाम ज़माना अजलल्लाहु फरजहु शरीफ फरमाते हैं कि हमारे वो शिया कि जिन्हें खुदा ने हमारी इताअत की तौफीक अता की, अगर वो उस इताअत पे बाकी रहते हैं तो वो हमारे दीदार से महरूम नहीं होंगे। अब यहाँ इताअत कैसे करनी है? आपके पास 11 मासूमीन की रिवायात और सब मौजूद हैं, हत्ता कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से भी हमारे पास चीजें हैं। अभी हम लोगों ने मसाइल सुने, इसमें मेरे ख्याल से ज़ियारत नाहिया का भी जिक्र हुआ था। ज़ियारत नाहिया वो ज़ियारत है कि जो इमाम ज़माना की ज़बानी है। तो इन चीजों से हम अपने आप को मुंसलिक रखें। इसके अलावा अपनी ग़ैबत कुबरा में तक़वा और परहेजगारी को इख्तियार करना। तक़वा क्या चीज है? वाजिबात अदा करना और हराम कामों से दूर रहना, बस इतनी सादी सी चीज है। इसके अलावा इमाम की मदद के लिए खुद को हर वक्त तैयार रखना। ग़ैबत में अपने इमाम के दिफा के लिए हर वक्त तैयार रहना। इसी तरह इस जमाने में बिलखुसूस सब्र और इस्तकामत की बहुत ज्यादा ताकीद की गई है क्योंकि इमाम की ज़रूर का किसी को पता नहीं है कि कितना दूर होगा, कितना नजदीक होगा। तो सब्र और इस्तकामत के साथ रहिए। इसके अलावा कि जो मैंने पहले बयान किया था कि अपने ज़माने के फुक़हा की पैरवी, और आखिर में इमाम के ज़हूर की दुआ। खुदावंद मुतआल से दुआ करते हैं कि खुदाया ये जितनी भी हमारे वज़ाइफ हैं हमें हकीकतन इन वज़ाइफ पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। बस मोहतरम 10 मुहर्रम गुजर चुकी है,
शाम गरीबा हमने मना ली, लेकिन जब हम अपने अपने घरों को गए थे तो हम गरीब नहीं थे। हमारे घर में हमारे बच्चे थे, हमारे बड़े थे, हमारे खानवादे के मर्द मौजूद थे, लेकिन वाह गुरबता कि करबला में खैमे भी जल गए और जितना साजो सामान था वो सब लूट लिया गया था। अजीजान मोहतरम, आप जब यहाँ से गए होंगे तो आप लोगों ने जाकर पानी पिया होगा। सलाम हो ज़हरा के लाल पर, नहीं मालूम क्यों कहा था कि अपने फाके को तोड़ देना। हमें पता था कि हम रात भर जागेंगे, हम दिन भर भूखे होंगे, तो ज़हरा के लाल ने कहा कि अजीजों तुम जरूर पानी पीना, लेकिन हम नहीं जानते कि करबला में पानी कब पहुंचा होगा। खुदा बेहतर जान सकता है। अरे इस पानी को देख के तो ज़ैनुल आबिदीन 35 साल रोते थे। मुमकिन है 10 मुहर्रम को पानी पहुंचा हो, क्योंकि महीनों को लाजमी इन हजरात को लेकर जाना था, इनको दरबार तक पहुंचाना था, तो इन्होंने मजबूरी थी कि इनको जिंदा रखने के लिए पानी जरूर पिलाया होगा। एक रिवायात में है कि इन्होंने ढूंढना शुरू किया कि आखिर किसको हम पानी के लिए बुलाए, क्योंकि सब तो वो है कि जिन्होंने हुसैन को कत्ल किया है। बस हुर की ज़ौजा को बुलवाया गया, क्योंकि हुर वो शख्सियत है कि जिसने मौला के पास कुर्बानी दी है। बस जैसे ही हुर की ज़ौजा पानी लेके आई है, एक नन्ही सी बच्ची है जो गश खा के गिरी हुई है। ज़ैनब कुबरा ने शाना हिलाया, बेटी पानी आया है। अरे पानी का नाम सुनना ना पूछती है, मेरा चचा पास आया है। अरे चचा पास आ गया मेरा। ज़ैनब कहती है नहीं मेरी लाडली, पानी आया है। कहती पुप्पी अम्मा आप भी तो बहुत प्यासी है, पुप्पी अम्मा आप पानी पीजिए। अरे ज़ैनब ने कहा बेटी पहले बच्चे पानी पीते हैं। बस ये सुनना था कि सकीना दौड़ती हुई मक्तल की तरफ गई है। ज़ैनब पूछती है बेटी कहाँ जा रही हो? कहा पुप्पी अम्मा आपने तो कहा ना पहले छोटे पानी पीते हैं, फिर आली असगर रजीबा का भैया, अरे वो मक्तल में प्यासा है। मकदार मोहतरम आखिरी जुमला, जनाब ज़ैनब पानी नहीं पी रही। सब कह रही है बीबी अभी भी पानी पी ले। कहती है मैंने हुसैन को ज़िबा होते देखा है, मैं किस मुंह से पानी पीऊं। आलम हिजाबाद उठे, कौसर का मंजर है, उधर बीबी ज़हरा बैठी है, कहती है बेटी ज़ैनब पानी पी ले, तेरा हुसैन पानी नहीं पी रहा। ज़ैनब अरे तेरी माँ रो के कहती है पानी पी ले। हुसैन तब तक पानी नहीं पिएगा जब तक ज़ैनब पानी नहीं पिएगी। खुदाया